Uh, Actually, there is no pen, so I should have written on whiteboard, unfortunately. Anyway, uh, topic is known to you, Indian diaspora, uh, the 19th century. Actually, first let me go to the background of how this theme came up to me and why I chose to work on this one also. Uh, when I was a doctorate student, then that time I was working on Afghanistan, and uh, in that relation, I explored some of the migratory uh, behaviors of people. I mean, nomadics and all sorts of people. And mostly you'll find in Afghanistan there is a nomadic culture and all that. That extending my theme, then I proceeded to work on more on migrations and circulation of culture and all sorts of things. So I took up this theme, and I got a chance, rather a very golden chance, when there was a conference by SARC countries, and I was one of the few very fortunate one to represent India on that forum. Uh, I had to speak on diaspora and circulation of culture, how that um, how diaspora leads to migration of people and then also migration of culture also. That was quite successful, and uh, continuing that, I mean, furthering the research in that area, I got a project from SARC Center Colombo, and I was handsomely rewarded for that. So this a project came up as such, and I worked on that project, and still I'm working. I wanted that this is almost I'm finishing a book on that theme. Hopefully, you'll see this book, in distant future. Now, when I say that Indian diaspora, then I was told to pick one or the other um, pockets from where the Indian diaspora happened. And when you see the map of India, you will find some of the pockets from, and this, let me first explain that uh, this is the migration uh, which happened during 19th century. Started from the first half of the 19th century, then spread the entire 19th century, later half, and then 20th century, a quarter of 20th century. Now, coming to the locale from where the migration took place, and you will be surprised to know that the most migration took place from uh, an area which is still providing a lot of migratory labors and all sorts of things. And it is the Eastern Indian migration. It's Eastern Indian belt. Eastern, when I say Eastern, means that pockets of Bihar, northern Bihar particularly, and pockets of Uttar Pradesh, Eastern Uttar Pradesh. So I termed it as East Indian diaspora,
Or then, uh, as far as the lingual things are concerned, lingual base of this diaspora was Bhojpuri diaspora. Um, I mean, more a particular language speaking people were picked up from those areas and they were sent to various locales of the globe. And that is why the Bhojpuri people, as well as their language, culture, and their creeds and all sorts of things, also spread with them. And Bhojpuri became a global language, and I don't know how much of you, if you belong to the eastern UP or Bihar, uh, I mean, you must be interested in this language. Tremendous literature also available on this of this language. Though it could not become a very popular one, but it is very much an spoken language, and literature left by the singers and all that, that forms the basis of the research. The folklore, the tradition, the songs and all sorts of things uh, form this the base of our research. So it's a more complex research rather than a straightforward traditional researches. So keep in mind, I have dealt with only with that particular region around 12 to 13 districts of uh, Uttar Pradesh, eastern Uttar Pradesh, and some of the districts of Bihar where Bhojpuri is spoken. And I don't know why this happened, that only those Bhojpuri speaking people were picked up for this kind of migration. Now, uh, why this migration happened? And it is a phenomenon of 19th century, keep in mind. I have already explained the area, the people, and now the region, how this migration took place. And I have already told you that how many districts were affected by this one. So around eight: Saran, Siwan, Gopalganj, Eastern Champaran, West Champaran, Vaishali, Bhojpur, Rohtas, Buxar, and Kaimur from what you call from Bihar. Uh, People were taken from these areas. Then come to the Uttar Pradesh. Uttar Pradesh has more districts involved in that one. Balia, Varanasi, Gorakhpur, Maharajganj, Ghazipur, Mirzapur, Mau, Allahabad, Jaunpur, Pratapgarh, Sultanpur, Faizabad, Basti, Gonda, and Bahraich. More or less, I mean, Bhojpuri and some Awadhi and also, local dialects are spoken in this area, which are more similar, more common kind of things. Some of the districts were of Nepal were also got involved in this diaspora. Then present Jharkhand, Palamu and Garhwa district, two districts of Jharkhand region was also taken for this one. Now, the region. Why this? Uh, why a rural-based economy or people involved in agriculture activities, mostly agriculture activities, and they were not very well off people. I mean, most of them were belonging to the lower caste, and caste you mean in our country. If you are of lower caste, it means that your fortunes are not very good. I mean, you are not well off.
So when I have studied the numerous caste, the segments I have divided that how many caste, how many people from different caste got. I mean, they migrated to those countries. Now, I was talking about the region. Why? What were the reason that which compelled them to migrate to different locations of the world? The first reason is that, listen very carefully. You must be knowing about the slave trade and all that. Right from the beginning of the discovery of the new world and discovery of the mm, routes to new world, that is northern and southern America and different parts of the world. The European countries, they migrated to those. The European countries got interested in the lands and the resources of those areas, but they had shortage of manpower. So what they did, they uprooted the first. They have started with experimented with their own people. Can you believe it? Americans got Irish and others whites, as slaves, but those were not sufficient. Then they captured African territories, and from there they uprooted villages after villages, locales after locales. Most of the hundreds of thousands of the black slave trade that happened. One of the most inhuman things happening to the world, and they took those slaves on a very arduous journey from Africa to Atlantic, and then spreading them wherever there was plantation industry. Plantation industry, you must be knowing what is the plantation industry. Plantation industry are those sugarcane, tobacco, mining. I mean, all sorts of things which they had. The planters had. I mean, the you know cotton and all sorts of things. Apart from mining and other things, so there are numerous works involved in that. But shortage of manpower, they got manual laborer from these continents, and that is a very sordid affairs. Sordid means a very sad stories of the uh, the slave trade. I mean, it's a kind of a flesh trade. Some of the Caribbean writers point out that it was a slave. It was a trade in flesh, human flesh. I mean, you are uprooting the entire villages and taking them to the high seas, in open seas. They died in thousands while traveling to those areas. So this is one aspect of the slave trade. Now, what happened to our Indian brethren and how they got involved in that? It is not very, what you call, not unusual with the Indians that they did not travel. Of course, there was something like a religious taboo that Indians, mostly Brahmins and all that, upper caste, they did not want to travel to the overseas. Otherwise, their religion would be in danger. वो समंदर क्रॉस करने से मजहब के ऊपर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था. So there was hardly migration overseas, but inland, there was migration. For example, like uh, tea plantation in Assam was mostly done by people from lower valleys of this Chittagong and others, and then you also find Tamilians and all that laborers. They were also migrating to tea plantation.
एंड ऑल्सो जो आजकल चल रहा है रोहिंग्या, लोग रोहिंग्या रोहिंग्या कहते हैं, रोहिंग्या as a terrorist or something like the branding them as the Rohingyas are the people. Most of the people don't know that who the Rohingyas are. Rohingyas were the people from Chittagong districts. I mean, the areas, the Bangladesh mostly. They were taken by the British as as laborers for plantation industry in Burma that time. Huge population got settled in uh, Burma and particularly in Rakhine state, and they were called Rohingyas. In other words, what I'm trying to suggest is that Rohingyas are also Indian as far as their origin is concerned. So they are not foreigners; they are Indians. But when they got settled, now they are very much branded as something very, I mean, not properly. I mean, they are being treated, but rather they are treated as enemies and something like that. Anyway, that is the thing. What I'm trying to suggest is that how the migrations used to take place during 19th century. Wherever there was need for plantations, the British used to take them either by force, either by or by recruitment and something like that. Now, our theme, East Indian diaspora or Bhojpuri diaspora, which I named as Bhojpuri diaspora, it happened just after 1834. What is the significance of 1834? The significance of 1834 is that slave trade was, when there was huge obnoxious reports about uh, the treatment to the blacks, was bad treatment rather, and atrocities committed on blacks. The British Parliament and other governments decided that the slave trade should be stopped at any cost. It should be stopped. So they stopped the black trade, slave trade from African continent and all that. Now, by that time, it will be interesting to know that how much meticulous British were uh, doing the things in India. They were not leaving even single things um, as on its own, but rather they were very much serious about everything. So what they did, first they occupied the territories. India by 1834 means that India was almost totally under British control. So what they did, they forcibly tried to have opium trade with China, and also they had plantation industry in Indian territory also, growing opiums and tobacco and all sorts of things, and it's selling it to the open markets of China and other places. So it was one thing. But other thing is that they also got huge number of islands or territories across the globe. But I have already told you that those territories at that time, they were uninhabited. So they got the utilitarians. The ideas prevailed that those areas to also be developed for our resource generation. Then who would be working on those areas? Then they meticulously planned that
our uh, Indian subjects should be better suitable for those working on those territories. So uh, this uh, the areas which came under their control outside India, they fought this opium war. China was also under their influence. Apart from that, you find uh, Mauritius under their control, Australia, British Guyana, that is the northern part of Southern America. Jamaica and Trinidad, that is Caribbean nation, the entire Caribbean islands. Suriname, Fiji, all these places had become mostly the British under the British occupation, and they were to be developed by at any cost. Now the entire planning was done, that how recruitment to those areas, for those areas to be done. तो इसमें जो है पहले तो इन्होंने प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। प्रोपेगेंडा क्या था? उन्होंने ये बताया लोगों को कि भाई दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी है जहां पे सिर्फ सोना ही सोना है, अबेंडेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और ये गरीबों में जाकर के ये प्रचार करते थे, जो बताया ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग थे, नॉर्दर्न बिहार के, उनमें जाकर के इन्होंने पहले तो कहा कि ऐसा ऐसा है और बस सिर्फ जाना है वहां पे और काम करना है और सोना लेकर के लौटना है। दिस वाज द प्लानिंग एंड पीपल गॉट ल्यूर्ड ऑफ दिस वन। तो क्या करना है भाई? तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो कौन कराएगा? 2-3 टर्म्स उसका था। दफादार, देयर वुड बी ए पर्सन नोन एज दफादार। वो आपके नाम रजिस्टर लेकर के जाएंगे और आपको नाम को नोट कर लेंगे। हर गांव में जा करके जिसको इसको जाना है भाई, वो सब लोग नाम दिखाएं, वहां सोना निकल रहा है और बस बस लूटने जाना है। ये उन्होंने ऐसा उनको ख्वाब दिखाया। दफादार वुड रजिस्टर द एंटायर थिंग, देन they would be sent to Calcutta port for final embarkment to, जो भी मैंने सब नाम बताए आपको, जो जो आइलैंड सब कब्जे में, ब्रिटिश कब्जे में थे, उसके ऊपर जो है वो उनको वहां पहुंचाना है। देवर कौन ये ऑफिसर कौन होगा? देवर नोन एज, उसको करप्टेड वर्जन, आई डोंट नो एक्चुअली एक्चुअल उनका क्या डेजिग्नेशन था। देवर नोन एज अरकटिया, मतलब जो टिकट काटने वाला, समथिंग लाइक दैट। तो अरकटिया, भोजपुरी लैंग्वेज में इन्होंने अरकटिया उसको बोला। तो अरकटिया के पास जाएंगे आप, अरकटिया आपका जो है पूरा रजिस्ट्रेशन का सामान करवाएगा। आपका जो भी झोला वोला और बिस्तर वगैरह सब आपके साथ रखा जाएगा। और उसके बाद फिर जहाज जो है कलकत्ता पोर्ट में, हुगली रिवर के पास जो है, वहां पे इम्बार्कमेंट का वो प्रोग्राम बनेगा पूरी तरह से जो है, फुल अरेंजमेंट, विथ फुल अरेंजमेंट। When you embark upon the ship bound for example, bound for Mauritius or bound for Caribbean,
अब आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया जो है। नाउ वी विल बी नोन एज गिरमिटिया। गिरमिटिया इज द पर्सन हु हैज गॉट परमिट। परमिट से वो गिरमिट कर दिया उसको। परमिट टू ट्रेवल टू कैरेबियन आइलैंड और एनीवेयर wherever the British used to desire। तो वहां से फिर जो है आपका एम्बार्कमेंट शुरू होगा। नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। क्या है साहब? अब आप अगर अंदाजा लगा सकते हैं तो उस जमाने की जर्नी कैसी रही होगी। दो तरह के जहाज होते थे, एक तो सिर्फ बादबानी से चलते, मतलब शिप ड्रिवन बाय द एयर फ्लो, और दूसरा स्टीम इंजन का मामला है। तो पहले ही मैं बताता चलूं, तकरीबन मैंने 80 टू 89 शिप्स का जो है आई काउंटेड फॉर वेरियस जर्नीज टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इतने लोग, इतने इतने जहाज गए, और उसमें उतने उतने हजार हजार उस तरह की अगर भी तादाद लें तो अच्छा खासा जो है बनता है। द पीपुल हु हैज नॉट इवन क्रॉस्ड, कुछ लोग तो नदी भी नहीं क्रॉस किए होंगे उस तरह से। नाउ दे आर embarking upon long and arduous journey of 10,000 miles on sea। for months they had to travel, and स्पेसिफिक उसमें वो लिस्ट सब आई है। आर्काइव्स का जो मैंने देखा तो उसमें लिस्ट है कि क्या क्या खाना है आपको, जो वो सब चीज फिक्स है उसके अंदर। तो बहुत से लोगों को सूट कर रहा है, बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं सूट कर रहा है, लेकिन उनको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो इस तरह से करके आपको वहां पहुंचा दिया जाता है कि भाई आप जो है आप वहां पहुंचे। और उसको कहा गया कि जो है ये आपका इमेजिन लैंड है, जो आपने ख्वाब में देखा था कि ये जो है आपका, जहां सोना और चांदी जो है बिल्कुल भर भर के मिलेगा आपको, जो है उस तरह से करके आपको पूरी तरह लेवर करके आपको ले जाया गया। Now, coming to the life on the plantation। अब जैसे सूरीनाम के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, सूरीनाम पास अगर मॉडल की तरह स्टडी करना चाह रहे हैं कि एक मॉडल लेकर के हम इस तरह से करें, तो बहुत से आइडियाज उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो सूरीनाम के बारे में कि सूरीनाम, मैंने बताया कि ऑन टॉप ऑफ द मैप ऑफ साउदर्न अमेरिका, densely populated jungle, entire jungle area is full of jungle. Area was full of jungle. Now, what the task was given? You continue to clear the forest and make it, uh, I mean, fully purposeful for agriculture and all that, plantation and all that. And very strict rules and regulations were to be followed. Otherwise, you will be dealt externally। तो उसमें बहुत तरह के, हर प्लांटेशन में बहुत बार रिवोल्ट्स भी हुए हैं, और बहुत से लोग मारे गए उसके चक्कर में जो है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते किसकी लाइफ जो है वो कब खत्म हो जाए, देयर वाज नो गारंटी टू दैट। इस चीज को समझिए आप कि वो, दे वर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू
if you don't work. A different atmosphere, different environment, different work culture, different food culture, and all sorts of things are new to you, and you have to survive on that harsh condition of colonial rules and all that. Very racial one also. It was a kind of racial slurs were also used in a large number of cases. So, life on the plantation industry was very harsh. एक इंसिडेंट जो रिपोर्ट हुआ है, large number of ships also faced wrecks. I mean, एक तो हाई टाइड है या ये है या सब बहुत रफ वेदर कभी कभी हो जाता है समुद्र में। when you क्रॉस अटलांटिक, तो जब टाइटैनिक डूब सकता है तो कोई भी जहाज डूब सकता है। ये तो जहाज बहुत बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होते थे उस जमाने में। 18th सेंचुरी में अभी डेवलप कर रहा है जहाज बनाने का। बहुत से मॉडल्स मैंने उसमें प्रेजेंट किए कि कौन सा जहाज जो है कैसे कैसे उसके मेक एंड ऑल दैट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट आर्काइव्स आई गॉट। बहुत से जहाज जो बहुत अच्छे बिल्ट नहीं थे वो बीच में रेक कर गया। रेक होने के नतीजे में आप समझ सकते हैं कितने इंडियन मारे गए होंगे। एक जहाज जिसका नाम नाम ही था उसका सीरिया। इस तरह से बहुत से नाम हैं जो मैं अगर मौका मिला तो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। कुछ भी नाम रख लेते थे जहाज का, उसके बाद उसको लेके चलते थे। सीरिया जो है वो फिजी के आइलैंड पे पहुंचते पहुंचते जो है बिल्कुल क्रॉस होने वाला था। उसमें जो है वो रैक होता है, उसके कहीं से जो है उसमें आग लग जाती है चिमनी से, उससे जिससे भी हो सकता है वो दैट वाज नॉट वेरी क्लियर। और उस पर जो भगदड़ मचती है तो अच्छे खासे लोग सब उसमें, आधे से ज्यादा लोग समुद्र में डूब जाते हैं और बाकी किसी तरह से बच बचा करके, क्योंकि बहुत नजदीक पोर्ट पहुंचते पहुंचते जो है वो आधा जहाज टूट गया। अब एक बात पूछी जाए तो हर जगह ट्रेजेडी का एक मसला होता है। दोज हु हैड गॉन फॉर ब्रिंगिंग गोल्ड टू देयर पुअर locality, their dream was shattered. Or not only that, but in different ways they used to die. अब जैसे एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, रिपोर्ट किया गया था, उसके साथ साथ जो, हाँ मैंने एक और चीज, स्लेव के बाद जो है, स्लेव उसको बोल रहे हैं जो ब्लैक्स हैं। इंडियंस को इंडेंचर्ड लेबर बोला जाता था, इंडेंचर्ड लेबर। जब कोई टर्म आए तो उसको घबराइएगा नहीं, इसको समझना, इसको समझे कि इंडेंचर्ड लेबर मीनिंग बाय द हायर्ड लेबर समथिंग लाइक, थोड़ा एक नोमेनक्लेचर को वो क्या, वरना वो सीधे सीधे स्लेव बोल सकते थे आपको, लेकिन इंडेंचर्ड लेबर बोला गया। तो थोड़ी रेस्पेक्टेबिलिटी की बात है। उसमें लिखता है एक राइटर कि एक स्लेव जो है वो बगावत कर देता है एक जहाज के ऊपर जो है, और वो हंगामा मचाता है। तो उसको क्या किया लोग जो है अंग्रेज ऑफिसर ने कि उसको उल्टा करके उसके टांग में रस्सी बांध करके उसको जहाज के हल से नीचे पानी में डाल दिया। तो जहाज के साथ वो चलता गया, वो चीख चिल्ला करके हो गया। जब जहाज पहुंचा है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे तो सिर्फ उसके टांग बची थी। रेस्ट ऑफ द बॉडी वाज ईटन बाय दोस sharks and other deadly sea creatures. तो इस तरह के भी पनिशमेंट दिए जाते थे। और बहुत से विजुअल्स हैं
सिनेमेटिक उसमें जिसमें आपको दिखाया कि प्लांटेशन इंडस्ट्री में किस तरह से लोग जो हैं बिहेव करते थे. That's why I'm saying it's a very sordid affair. When the entire episode can bring tears to our eyes. इतना इतना मामला संगीन था जो है. Now, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको लोगों ने कोशिश किया है कैसे इसको इसको इसकी स्टडी की जाए. तो बहुत सी रिसर्चर ने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स इस पे काम किया है. जो मैंने आपको बताया अभी तक, ये जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, लोगों को बाहर भेज रहे हैं, उसकी कहानी है. कैसे वो लोग जा रहे हैं और कैसे क्या कर रहे हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, सी countries where or the localities where they were sent had increased to, I mean, various, जैसे जैसे कब्जा होता गया वैसे वैसे जो है एरिया बढ़ते चले गए. रीयूनियन, मॉरिशस का नाम मैंने लिया था, गायना का नाम था, ट्रिनिडाद टोबैगो, जमाइका, मार्टिनिक, ग्वाडिलोप, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया, साउथ अफ्रीका, सेंट विंसेंट, सूरीनाम, फिजी, ईस्ट अफ्रीका, सेशल, सिंगापुर एंड अदर्स. अब यहां पे एक्सपोर्ट ऑफ कल्चर के ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं. एक्सपोर्ट ऑफ कल्चर क्या है? एक मॉडल जो है हमारा भोजपुरी है. ये एक भोजपुरी फॉक ट्रेडिशंस एंड ऑल दैट. मॉरिशस का जो अभी की स्टडी अगर आप करेंगे तो भी आप वही पाएंगे. मॉरिशस में वहां के पॉपुलेशन को भोजपुरी लोगों ने ऑल्टर्ड कर दिया. मोर देन 55% ऑफ Mauritian population, they are Bhojpuri speaking people. You'll be surprised to know all these things. Rest of them are French and Africans and all that. I mean, बहुत से मिला करके लोग हैं. 45% मेजॉरिटी मीन्स, अगर आप एक ग्रुप को ले तो वहां पे क्या किया इन्होंने, दे डेवलप्ड प्योर भोजपुरी कल्चर. अब कहेंगे प्योर भोजपुरी कल्चर क्या होता है? तो प्योर भोजपुरी कल्चर में जो लोकल यहाँ का कल्चर है उसको वहां उन्होंने रेप्लिकेट किया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन हिंदू क्रीड यू आर नॉट प्योर अनलेस यू बाथ इन गंगा. और कोई भी पूजा करना है तो गंगा जल जो है वो जरूरी होना है. तो इन मॉरिशस देर इज ए पॉन्ड नोन एज अनूप तालाब. अब कहा भाई मॉरिशस यहाँ है और गंगा नदी कहाँ बहती है, तो कैसे इसको ये किया जाए. तो उन्होंने क्या किया कि एक तालाब खोदा, जितना पानी उसके अंदर हो सकता था उसमें ला करके 2-3 शिप जो टैंकर वाले होते हैं जिसमें ऑयल को ले जाते हैं, वो गंगा जल भर करके ला करके उस तालाब में डाल दिया. कहा कि ना अब आप जो हैं सारे कल्चर को आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब जहाँ सारे आपके क्रीड का काम हो जाएगा यहाँ पे. उसी तरह से जितना भी होली, दिवाली और सब चीजें, ईद, मुहर्रम, Bhojpuri is not only for, I mean, the Hindus or any Muslims are also there.
तो वो मुहर्रम भी मनाते हैं और वो भी करते हैं सब, ईद वगैरह तो फेस्टिवल का जो मामला है। इसके अलावा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक वो कल्चर जिसमें थोड़ा एस्थेटिक सेंस वाली बात हो, तो उसमें जैसे ये लोग भोजपुरी एरिया में मशहूर है बिरहा गाना। बिरहा का मतलब होता है सेपरेशन फ्रॉम योर बिलवेड। तो वो उस ट्रेडिशन को भी वहां ले गए, एंड बिरहा इज हैज फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ सोर्स मटेरियल फॉर द रिसर्चर, कि उसके अंदर साइकोलॉजिकल क्या उसके अंदर एस्पेक्ट है। वो औरतें झूमर गाती थी, या कजरी है, या और उस तरह के बहुत से गाने हैं जिसको भोजपुरी कल्चर का बहुत पिलर माना जाता है। भिखारी ठाकुर एंड अदर्स, एक मालिनी अवस्थी है जो बहुत अच्छी सिंगर है आदि प्रेजेंट टाइम का, वो ये सब गाती हैं, जो है जो भोजपुरी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। और बाकी शादी ब्याह का जो मामला है सब है, वो सब भोजपुरी तर्ज पे होता है। तो मैं एक बात कर रहा हूं कि वो सब चीजें मॉरिशस में है नाउ, एंड दिस इज द भोजपुरी डायस्पोरा इन मॉरिशस, अगर इसको मैं इस तरह से नटशेल में बता दूं तो। And this is not only in Mauritius, but also in Caribbean also, in Suriname also, in Fiji also, and in eastern belt of our country, that is, mm, I mean, East Asia also, Indonesia or Java, Sumatra, and others. They have this. But my study is basically specifically about the Bhojpuri people. Uh, if I continue, it will go on and on. So, bit of फिर हम साइकोलॉजिकल पे आते हैं, और साइकोलॉजिकल में जो हमारा लिटरेचर है, एक आशा सिंह करके एक स्कॉलर थी, उन्होंने जो है सारे फोक लोर्स को जो है उसको उस पर काम किया की उसने बताया कि भोजपुर जो माइग्रेशन हो रहे हैं तो उसके पीछे जो है ये फोकलोर का क्या रोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए लाइन, सोनवा, अब पता नहीं कितने लोग भोजपुरी आती है, समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन उसका मैं मीनिंग बता दूंगा। सोनवा कारण ऐली राम एहिरे मारीच देश से गति भैल सोनवा शरीर बहिरे मारीच देश। वी केम टू दिस लैंड, एक लेडी लिख रही है कि वी केम टू दिस लैंड बिकॉज ऑफ मनी, एंड दिस मनी इज द काउज ऑफ टॉर्चर इन आवर बॉडीज। जिसके लालच में हम यहाँ आए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फिर मर्द के अलावा जो है औरतों को भी ले जाया जाने लगा वहां पे। लेडीज वर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द ग्रुप। भावे नहीं मोहे भवनमा हो राम, विदेश गवनवा सैया हमार। माई हस्बैंड हैज लेफ्ट मी, अब मुझे जो है आई डोंट लाइक माई पैलेस, आई मीन पैलेशियल हाउस ऑल्सो। नथिंग सूट्स, आई मीन नथिंग इज एंजॉयबल फॉर मी इन दिस वर्ल्ड नाउ। ये पैंग्स ऑफ सेपरेशन है जो उस जमाने में 19वीं सेंचुरी में जो माइग्रेशन हुए वहां पे ये लिटरेचर डेवलप हुआ है। काहे मेरी सुधी बिसराय रे विदेशिया, विदेशिया मीन्स दैट हु हैड गॉन टू फार ऑफ लैंड। और तड़प ही दिन रैन गंवाए रे विदेशिया, और काहे मोरी निहिया लगाए रे विदेशिया। व्हाई आई वाज सो मच इन लव विथ यू इफ यू हैड टू लीव मी। जब आपको जाना ही था तो फिर आपसे दिल लगाने से क्या फायदा है। ये सब फॉकलोर ट्रेडिशन है जिसको भी लोगों ने रिसर्च के बेस बनाया। एक और
वो लिख रहे हैं कि फिरंगिया के रजवा में छूटा मोरा देसवा हो, गोरी सरकार चली चाल रे विदेशिया, भोली हमें देख अरकाती भरमाए हो, कलकत्ता पार जाओ 5 साल रे विदेशिया। अब ये पूरा कहानी है, लंबा है ये, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसमें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों की वजह से हमारा देश छूट गया और सारी मुसीबत मेरे ऊपर आई है। ये जो गोरों की सरकार है, इसके वजह से हम जो जो इन्होंने चाल चली, उसके वजह से हमारे लोग, सब लोग जो है बिखर बिखर गए जो है। तो इस तरह के इमोशनलिटी और इसके अंदर जो चीजें भरी पड़ी हैं, दैट मेक्स यू, आई मीन, फील वेरी पैंग ऑफ देयर सेपरेशन। अब एक तस्वुर कीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक पूरा गांव है या पूरा इलाका है, वहां से 500 मर्दों को ले जाया गया जो, और वो पहले ऐसे ही ले जाते थे रैंडम, उसके बाद उन्होंने 5 साल का परमिट दिया कि 5 साल को आपको जाना है। तो एक रिसर्चर ने उसको लिखा है पैंग्स ऑफ लेफ्ट बिहाइंड वुमन, कि वो औरतें जो 500 मर्दों की वाइफ्स थी, वो तो छूट गई गांव में। आजकल सऊदी अरबिया में भी लोग ऐसी होता है कि 2 साल के लिए गए और 2 साल के लिए वाइफ को छोड़ के चले गए, और उसमें फिर सेपरेशन भी होता है, उसमें मैरिज छूट जाते हैं। 5 साल के लिए जा रहे हैं और ऐसे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जो उस पर अपनी सेफ्टी भी नहीं है। अब 500 विमेन जो है वहां पे, अब वो उसका इंतजार ही तो कर सकती, क्या कर सकती, जरा बताएं। तो पैंक्स ऑफ लेफ्ट बिहाइंड वुमन, उसमें भी बहुत तरह के फॉकलोर को इन्होंने, रिसर्चर्स ने डाले हैं। आई थिंक रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एनीवे, थोड़ा सा और एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर हम खत्म करते हैं। कह रहे हैं कि एक आदमी जो है, वो एक रंगरूट आता है, वो पूरे पोएम के फॉर्म में, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया है, तो इस वजह से मैं इसको हिंदी में बता रहा हूं आपको कि एक बैठी हुई है एक लेडी अपने घर के दरवाजे पे, उसका हस्बैंड जो है कहीं सूरीनाम वगैरह गया हुआ है। तो वो आदमी आता है और वो बताता है कि तुम क्यों उदास बैठी हुई हो? ओ ब्यूटीफुल, व्हाई आर यू, योर आईज फुल ऑफ टीयर्स, व्हाई आर यू अवेटिंग, हु आर यू अवेटिंग with your tearful eyes? The migrant's wife says, my husband, slim and fit like you, has gone to Pradesh, foreign land. I am awaiting him with tearful eyes. मेरा हस्बैंड चला गया है, इसलिए मैं उसका इंतजार करती हूँ। अब ये जो है, वो आदमी, वो रंगरूट रहता है या फिर जो भी कहिए उसको, मन चला या जो भी, तो वो कहता है कि भाई मेरे पास सोना चांदी सब कुछ है, ये रखो और मेरे साथ चलो, तुम्हारे मतलब तुम्हारा जो आंसू है उसको मैं किसी तरह से खत्म कर दूंगा जो है। Then the migrant's wife says, my husband is also slim and fit like you, and is a handsome man, has gone to Pradesh, but I will wait for him. I will put your gold and pearls into fire. तुम्हारे सोने चांदी को मैं आग में डाल डाल दूंगी। विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि मेरा हस्बैंड लौटेगा जो है। आई मीन, ये सब पढ़ करके आप बहुत ये वैसा फील करेंगे कि क्या रियलिटी ऑफ लाइफ होती है। बहुत सौ के लोग नहीं लौट भी, इस तरह की मामला हुआ, लेकिन जो लौट गया तो समझिए बहुत बड़ी बात है। ये उस जमाने की रियलिटी बता रहे हैं कि देखिए कैसे माइग्रेशन और कैसे चीजों को अफेक्ट करती है। उसी में बहुत से चीजें और निकल के, जैसे एक और लाइन सुनिए। अब वो रिटर्न हो रहा है,
उसमें जो गाने बने उसके देखिए आप। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हो, ले ले आई हो पिया सिंदूरा बंगाल के। अब एक आदमी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से या सारण या सिवान डिस्ट्रिक्ट से कहीं गया है कमाने के लिए, तो उसको भी उसकी वाइफ कह रही है कि पानी जहाज से आप जब लौट करके कलकत्ता पहुंचे तो कलकत्ता का सिंदूर बहुत मशहूर है, वो सिंदूर मेरे लिए लेते आइएगा। सिंदूर टीका जो भी होता है सब चीजें वो आप लेकर के मेरे लिए आना है। इसको ये फॉकलोर और उसका कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी बता रहा है ना, इट्स पावरफुल इमेजिनरी टूल्स टू अंडरस्टैंड द पैंग्स ऑफ दोज हु गॉट सेपरेटेड। मैंने आपको बताया था कि जहाजों के नाम भी बहुत से आए हैं, जैसे विरार है, पूना है, बयार्ड, सीरिया, हावड़ा, देन पेरिक्लिस। ये सब नाम है, इस नाम से क्या है, सबको जिस जिस साल भेजा गया उसकी रिकॉर्डिंग पूरी मौजूद है। एंड इट गिव्स प्रोवाइड्स यू डिटेल्स ऑफ हाउ मेनी पीपल हैड लेफ्ट द कंट्री एंड वेदर दे रिटर्न इट नॉट। रिपेट्रिएशन का भी मामला आता है। फिर जब वहां पे कॉलोनीज में जो लोग रुके और वहां पे जो प्रॉब्लम फेस किया, तो फिर सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको डिसाइड किया कि नहीं, इनको जो है चांस दिया जाए, फिर से ये लौट करके घर जाएंगे लोग। तो उनको परमिशन मिला घर जाने की जो है, और उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जितना उन्होंने सहा है उस दौरान में, जो लोग भी माइग्रेट करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात मैं कहूँ आपसे, टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर, जो ट्राइबल्स हैं, आप लोगों ने पता नहीं कितना अंदाजा है ट्राइबल कैसे रहते हैं। ट्राइबल्स लिव्स इनसाइड द, वो ट्राइबल जो जंगली ट्राइबल्स हैं, वो वाले ट्राइबल ने जो राजस्थान वगैरह, छोटा नागपुर के ट्राइबल्स उस जंगल के अंदर ही घर बना करके अभी भी वो जंगल जंगल में ही रहते हैं। अब क्या हुआ कि इन लोगों को पता नहीं क्या सूझा, इधर से तो ले जा रहे थे, जो लेबरर्स थे और जो फार्मर्स थे उनको उठा के ले लिया, और छोटा नागपुर के अंदर भी जाकर के रेड किया इन्होंने, और जैसे अफ्रीका में पकड़ रहे थे अपने उसको जो है, वो उन्होंने छोटा नागपुर पकड़ना शुरू किया और वहां के आदिवासियों को उठाया। आदिवासियों को उठा करके, वो आदिवासी जो बहुत रेयरली गांव के अंदर भी नहीं जाते थे, जाते हैं, मतलब अभी भी बहुत से लोग जो है बहुत वो सेक्लूडेड रहना पसंद करते हैं, उनको उठा करके ले आए शहर के अंदर, शहर से फिर जहाज पर डाल दिया, ये कर दिया। तो उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है सबसे ज्यादा थी, जो है वो एडजस्ट ही नहीं कर पाए। उनका जो रहने का तरीका था बिल्कुल डिफरेंट था उन लोगों का। तो ये इस तरह की चीजें लोग बर्दाश्त करते रहे, एंड कॉलोनीज, colonial rules all flourished. Uh, there is a theory that why people migrate, जो इसको मैंने काफी डिटेल में, almost a chapter is formed, like why people migrate. तो और सब रीजन है, जैसे पुल एंड पुश फैक्टर, ये क्वेश्चन भी इस पीसीएस में इस बार जो है मैं एग्जाम में था, तो वहां भी पूछा गया था कि पुल एंड पुश फैक्टर क्या चीज है, तो ज्योग्राफी में था माइग्रेशन के सिलसिले से। तो एक तो होता है कि वो कोई चीज है, अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा जॉब और चीजें और सब मिल रही है, तो लोग उस तरफ पुल होते हैं, ठीक है, तो उसको पुल माइग्रेशन कहते हैं। और एक ये है कि आपके इलाके के ऊपर जो है कोई बहुत बड़ी आफत आ गई, और बहुत से होता है एथनिक वार वगैरह, तो आपको पुश किया जा रहा है कि आप इस इलाके को छोड़ दें। तो पुल एंड पुश फैक्टर्स की वजह से भी जो है बहुत से माइग्रेशन, अब फोर्सिबल है ये, हमारा जो थीम है वो फोर्सिबल इविक्शन है ये,
और फोर्सिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपुल है, जिसमें मतलब पब्लिक के चाहते और ना चाहते हुए भी लोग को माइग्रेट करना पड़ रहा है, और उसमें ल्योर है, बहुत ज्यादा ल्योर कर रहे हैं, और वहां जाकर के कुछ नहीं मिल रहा है खास करके ये। एक एस्पेक्ट जो अब इमर्ज हो रहा है, ये तो मैंने फार ऑफ लैंड्स के बारे में बताया, एक और स्टडी है जो लोग माइग्रेशन वगैरह पे काम करना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं से अगर आपको मौका मिले तो कुछ करना अगर है, तो एक आईडीपीस कहलाता है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपुल। इंडिया में बहुत से पॉकेट्स ऐसे बन गए हैं, वहां भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो सब डाटा अभी सब जनरेट हो रहा है, चूंकि वो न्यू एरिया ऑफ स्टडी है। किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के लिए इस चीज को आप तैयार कर सकते हैं। आईडीपीज कहलाता है। तो आईडीपीज का मतलब यह है कि आप वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस्ड होकर के कहीं सेटल्ड हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिखों के बारे में कहा जाए, तो इंडिया में सिख ऑलमोस्ट जो है हर शहर में आपको मिल जाएंगे जो है। तो उनके ऊपर एक स्टडी हो सकती है कि भाई ये कैसे यहाँ आए, ये तो उनको कौन सा रीजन लेकर के आए, तो ज्यादातर इकोनॉमिक रीजन वगैरह होते हैं, लेकिन सिर्फ वो रीजन नहीं है, बताया आपको कि ना बहुत से फोर्सफुल रीजन भी है, जिसको फोर्स कर करके जो है वो करते हैं। और जैसे भोजपुरी, अभी भी भोजपुरी माइग्रेशन है, बॉम्बे वगैरह के जुहू चौपाटी वगैरह में अगर आप जाएंगे देखने के लिए ना, तो वहां पे वो लोग छठ पूजा मनाते हैं। छठ जो है वो भोजपुरी पीपुल का एक पार्ट एंड पार्सल कल्चर है, वो और लोग नहीं मनाते हैं। तो जुहू चौपाटी के पूरे बीच पे लोग छठ भरे पड़े हैं, लाखों लोग वहां पे होते हैं। तो वो लाखों लोग कहाँ के हैं, वो भोजपुरी बेल्ट के हैं। तो इंटरनल डिस्प्लेस पीपुल में या ये इसको शामिल किया जाता है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बल्कि और भी चीजें, जैसे जैसे अब रेलवे जब आया, इंट्रोड्यूस हुआ, अब सोचिए ना भाई, हम लोग उसको बहुत मतलब दूसरे अंदाज में लेते हैं, एकेडमिक अंदाज में, कि रेल से क्या फायदा हुआ। लेकिन एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो एक लेडी अपने मतलब अपने शौहर के जाने के ऊपर जो है वो कह रही है कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, और भी इसके आगे है वो मैं भूल रहा हूं। तो रेल जो है, रेल हैज बिकम इनेमी ऑफ माइंड एंड माई हस्बैंड इज गोइंग थ्रू दैट रेल। वो टिकट भींग जाइल रे, कुछ इस तरह करके कि जो टिकट लिया है वो गल जाए या आ जाए और मेरा हस्बैंड लौट आए, जो है बेहतर है कि ना जाए जो है, लेकिन वक्त के सामने मजबूर है, वो रेल जो है उसको लेकर के जाता है। अब एक जो है मिर्जापुर से माइग्रेट होकर के वो रंगून जा रहे हैं। तो सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली, नाग उसका जो है कचौड़ी गली का कहानी है। कचौड़ी गली सून कई बलमू, आपने कचौड़ी गली को सुना सुना कर दिया, आपके जाने से गली जो है सुना हो गया है। ठीक है, यही मिर्जापुर से, एक तो रेलवे का हो गया और दूसरा जहाज का बता रहे हैं, यही मिर्जापुर से उड़ने जहाजिया हो, और उड़ने जहाजिया हो, और देखिए लास्ट का लाइन है ये, कह रहे हैं कि सैया चल गई रंगून हो, कचौड़ी गली सून कैल बल में। और वो जहाज से उड़ करके
रंगून बता तो रहे ना, रंगून में भी काफी माइग्रेशन हुआ है इंडियंस का, वहां भी प्लांटेशन इंडस्ट्री पर अंग्रेजों ने लगाया था, उसकी वजह से हुआ। आईडीपीज के बारे में बोल दिया मैंने। आईडीपीज बहुत ज्यादा दूसरा डाइवर्जेंट है, लेकिन मैं तो सिर्फ दूर वाले जो इलाके थे उनके बारे में मुझे बोलना था कि भोजपुरी का जो सेटलमेंट हुआ है, भोजपुरी आईडीपीज वगैरह का, तो इसके अंदर हर एस्पेक्ट्स को हमने शामिल किया। ट्राई माई बेस्ट के चीजें आ जाए। हालांकि ये पूरी बुक है, ये आई मीन इट्स गोइंग टू बी इन बुक फॉर्म, तो आप समझ सकते हैं कितना मटेरियल होता है, 250-300 पेज का। उसको बहुत कम करके मैंने बताया आपको, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा आप लोग। अगर कभी और मौका मिला तो इस पर और मैं डिटेल में बताऊँ। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव क्वेश्चन क्वेरीज, जस्ट few of the questions I can take up. Sir, very interesting lecture. And some of the reason you have cited that they were lured for gold and silver. So I don't know previously about this, but I only know indentured labor, they were migrated or taken by the British. But because slave trade was stopped, so very interesting and amazing lecture, sir, for me also. And I have taken notes for whole of your lecture. There are 4 or 5 pages. So very interesting for me. Thank you, sir, Dr. Saab. Thank you. Actually, not Yes. very in-depth study. There are books available on this also. This, I mean, from different angles. But every scholar has its own way of looking into things. But my take was that why I should not look from the Indian perspective point of view. Yes. बहुत से लोग जैसे कैरेबियन में है, कैरेबियन में एक हंगलू साहब हैं और एक और कोई ऑथर है, उन लोगों ने भी कैरेबियन पर्सपेक्टिव को भी लिखा, तो उनको कैरेबियन आर्काइव्स का जो है सोर्स मटेरियल मिला वहां पे। हमारे पास सभी 50 फोटोग्राफ्स पड़े होंगे, तो वो फोटोग्राफ वगैरह सब तो किताबों में आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कैरेबियन पर्सपेक्टिव से लिखा कि कैरेबियन में जब लोग पहुंचे हैं तो वहां क्या क्या फेस करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने रूट को पढ़ा है कि जहां से लोग निकल के जा रहे हैं वहां पे क्या फील कर रहे हैं। तो जितने भी फॉक लोर और फॉक पोइट्स थे जमाने के, भिखारी ठाकुर एंड ऑल दैट, नंबर ऑफ देम, they pin down it in a poetic form, but that also is serving the purpose of knowing the psychological aspect of migration. तो इसलिए जो है उसमें फिर और भी बताया आपको कि भाई लेयर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ये बता रहे थे। जैसे स्पेनियार्ड ने अमेरिका को जब फतह किया और उसके बाद वहां पे जरूरत पड़ी, तो उन्होंने आके यूरोप में बताया कि साहब वी हैव फाउंड एल डोराडो। एल डोराडो मीन्स लैंड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और उसको और प्रचार किया लोगों के सामने, और लोग अट्रैक्ट होकर के सब लोग भागे जो है वहां नॉर्थ अमेरिका की तरफ। और वहां फिर वो काम तो सख्ती वाला होता है। गोल्ड सिल्वर जो है कहीं नहीं पाया था। कहा ना श्रीलंका में गोल्ड रश, दे कॉल इट गोल्ड रश। हाँ, गोल्ड रश एंड ऑल दैट, वो ऑस्ट्रेलिया का है गोल्ड रश। yes. तो एल्डोराडो, गोल्ड रश एंड ऑल दैट, लेकिन कहीं कहीं पे रियलिटी था, कहीं पे बिल्कुल कुछ नहीं, जो है बैरन आइलैंड में भेजा जा रहा, आपको वहां आपको सर्वाइव करना है। ये हमारा टेक था। Sir, this is also very interesting that Bhojpuri culture was exported and now they were celebrating all, or they were taking Ganges water to that pond you cited. So I think, sir, this is your pioneering study, that you have studied the root cause of their migration, the why, the reasons you have cited. No, that's true. That's true. Okay, it's because but it's not actually only Bhojpuri. For example, in Suriname, yes, what happened? Suriname was half occupied by Dutch, and there were Dutch laborers all working over there. Then came Bhojpuris. yes. Now Dutch laborers and Dutch officials and Bhojpuri, they got intermixed. अब वहां पे एक नया लैंग्वेज डेवलप किया है जिसका नाम उन लोग सरनामी बोलते हैं। सरनामी डिक्शन इज ऑल सरनामी, सरनामी, सुरीनाम से सरनामी हो गया।
वो एक बाजाबता लेक्सिकॉन डेवलप कर गया है कि दोनों कल्चर के मिलने से भोजपुरी और डच लैंग्वेज के एडमिक्सचर से कौन सा लैंग्वेज निकल सकता है, तो उसको सरनामी बोला उन्होंने. सिमिलरली यू विल फाइंड इन मॉरिशस there was a sizable number of French were also there. French also got Bhojpuri mixed with their language, French language. अब cuisine करके जो बोलते हैं हम, ला cuisine, जी तो इन लोगों ने भोजपुरी ने ला cuisine मतलब किचन को इन्होंने ला कुजिनवा करके बोलने लगे. ला कुजिनवा, लाख किचन का मतलब ला कुजिनवा. तो इस तरह से एडमिक्सचर भी हुआ है बहुत जगहों पे. तो भोजपुरी कल्चर तो सरवाइव किया है, लेकिन साथ साथ में कुछ लोकल कल्चर जो वहां के थे उसको भी उन्होंने अडॉप्ट किया है. बाकी हर चीज डांस एंड ऑल दैट कंटिन्यूड. यस. there was intermingling of cultures, east and west. एनी स्कॉलर प्लीज, जिनके जहन में कोई बात हो. Yes, No, please, sir. you can. जी बताइए सुनीता. कोई बात नहीं है सर. कुछ पूछना हो बताइए तो क्या होता है. नो सर, बहुत अच्छा लगा. अच्छा, थैंक यू सो मच. क्या अच्छा लगा? कौन कौन सा एस्पेक्ट अच्छा लगा बताइए. सारे अच्छे लगे और नए नए मतलब लैंग्वेज सुनने को मिले. हाँ, बहुत वो अच्छा लगा. जब तक आप दो तीन चीज को नहीं मिलाते हैं तब तक रिसर्च में मजा नहीं आता ना. अच्छा, मेरा जी रिसर्च सर. जो है सुनीता, मेरा रिसर्च जो है वो बेसिकली, देखिए ट्रेडिशनल रिसर्च को अब थोड़ा सा छोड़िए. आप लोग जो है, जो भी रिसर्च टॉपिक है आपका, वो तो है ही है, वो जी सर. ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं. ट्रेडिशनल टॉपिक को इंटरडिसिप्लिनरी बनाइए. जमाना बदल गया है. अब ये जो जी है, सर. जब तक आप तो थोड़ा सा कहीं और चीज से, किसी और एंथ्रोपोलॉजी से, सोशियोलॉजी से या इकोनॉमिक्स से या किसी चीज से भी अगर आप मैच वो करते हैं, इंटरमिंगलिंग करते हैं, तो वो एक नई स्टडी निकल के आती है. तो इसमें जी तीन सर. चार एस्पेक्ट बताते हैं. साइकोलॉजिकल स्टडी भी है. तो साइकोलॉजी में ये था कि भाई आदमी जो है, रिपेट्रिएशन हो रहा है या जा रहे हैं लोग, तो बहुत से लोग पागल हो जाते थे. वो बिल्कुल सोच सोच करके पागल हो जाते कि पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, और समुद्र के बीच में जाकर के वो हंगामा करने लगते थे. तो साइकोलॉजी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, फिर उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, और भी डिसिप्लिन को ला करके इसके अंदर तब जाकर के एक बेहतरीन रिसर्च होता है. ट्राई टू बी इंटरडिसिप्लिनरी इन योर अप्रोच. और बताएं कोई. जी सर. थैंक यू सर. जी महेंद्र. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. बताएं. जी. You have delivered a very nice lecture, but थैंक यू. does the diaspora in 19th century migration and settlement does the reflect the slavery in this content? Yeah, settlement. Okay, nice. I have already explained, Mahendra, that it was change of nomenclature, you can say. Slave mode of production is there through slaves which was brought from Africa. सेम लोकेल में, जैसे कैरिबियन में पहले ब्लैक्स पहुंचे, अफ्रीकन को लेकर के आए कि उनसे काम करवाया, तो वो तो स्लेवरी कहलाई जो है. फिर उसी जब स्लेवरी बंद हो गई, वो एवोल्यूशन कर दिया गया, तो फिर इंडियन को लेकर के आया और कहा कि नहीं, आप इंडेंचर्ड लेबर हैं, तो आपको भी वही, तो काम तो वही कर रहे हैं. वो काम तो ऑलमोस्ट गुलामी का ही काम है. वो गुलामों की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं. सब कुछ उनके साथ बड़ा ही नहीं ह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है. और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आपको, जो है वो स्लेव्स या वो जो लेबरर्स जो यहां से पहुंचे इंडिया से, मॉरिशस के बारे में बता रहा था कि साहब जो है, एक राम गुलाम करके आए थे यहाँ अपने इलाके में, इधर बलिया वलिया के साइड में.
उनको आर्काइव से ये मिला, पता मिला कि उनके तीसरे जनरेशन जो है वो पीछे, उनके दादा परदादा जो है वो आए थे हिंदुस्तान से, तो उन्होंने आर्काइव से उसका ट्रेस करवाया और वो एग्जैक्टली मैच कर गया वो, और मैच करवा दिया। तो उस गांव वहां पता करते हुए राम गुलाम, एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वहां मॉरिशस, वो आए अपने गांव, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अकॉर्ड किया उनको बहुत रेस्पेक्ट वगैरह, और वो अपने गांव में आकर के सबसे मिले उले। तो खैर वो तीसरी जनरेशन की बात थी, तीसरी चौथी की। तो वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पहले गुलाम रहे या ये रहे, वही लोग अब वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। वहीं पे वही लोग जो है, साउथ अफ्रीका में भी वही हुआ, फिजी में वही हो रहा, मॉरिशस में वही हुआ, और कैरिबियन वगैरह में भी वहां पे ज्यादा ज्यादा ब्लैक्स ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इंडियन जो पॉपुलेशन, जो भोजपुरी पॉपुलेशन है, वो लोग भी हुकूमत में है। तो एक जो मिसफॉर्चून उनके बाप दादा सहे थे, आज उनके जो जनरेशन है वो उनको फायदा उठा रही है। नाउ दे आर नो मोर स्लेव्स, दे आर नो मोर, बट वो एक नॉमेनक्लेचर है, लेकिन इन ह्यूमन काम तो दोनों से लिया गया है, स्लेव से भी और इंडेंचर्ड लेबर से। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, thank you, sir. थैंक यू। और कोई? कायनात? नायरा? और कौन लोग हैं? नफीसा? इरशाद? Yes, sir. रुखसार? Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी। नफीसा, Nafisa. एनी क्वेश्चन? हाँ जी। No, sir. Thank you. It was very nice hearing you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोई है? मोहम्मद? मोहम्मद यू वांट? क्या नाम है? मोहम्मद एन? इरशाद? हिना? सोहेल साहब? Thank you so much, sir, for this informative and illuminating lecture, sir. ओके ओके, We थैंक यू, learned so much from your lecture, Thank you, and the sir. way you have explained, sir. One of the interesting things, the way you have explained each and everything in so much simple language and very informative, very amazing for me, sir. That Right. I am fortunate to attend your lecture, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू डॉक्टर साहब। आई से गुड बाय टू ऑल यू। हाँ, Yes, okay, sir. शुड आई से गुड बाय? थैंक यू। Thank you. The representative from UGC. I'm ending my lecture now. Sir, okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, thank you.